Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here with the new topic which I exactly have brought to you. I hope you are going to enjoy this topic. It's gonna be very handy for rest of the students who are learning English. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. You have to enjoy it. You have to watch my video till the end and you have to subscribe me. You have to, what should I say, press the bell icon so as you could be able to get further notification of my English language classes. So today I have brought to you the very essential topic. It's very nice and I am gonna tell you the very essential usage in English. It is the most important, and most of the people, they are having problem when they are speaking English. What basically happened with them? Basically they have a lack of things. You want so many things in English which you have to speak on a daily basis. But if you have lack of different kind of phrases, lack of different kind of structure, if you have lack of grammar, what should I say, sentences, if you have lack of GV, if you have lack of idioms, so exactly most of the students, they have problem. So I just want to sort out your problem. That's why I've been here, and I am gonna give you some tips. One of the very essential, very handy usage I'm gonna tell you today. It's all about come what may and whatever happen. Today I have brought to you this topic, come what may and whatever happen. अच्छा, इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? इसका मतलब बहुत आसान है और इसको समझना है, इसको समझना भी है और बोलना भी है भाई. You have to speak as well. Not only you have to understand it, but you have to, utilize in a daily conversation. When you are conversating with the people, you have to use these things in your spoken skills on a daily basis. It's going to be very nice for you people. So that's why I have brought to you. Okay, here we go. I am gonna tell you how to use it in a sentences. When you are speaking English, in the meantime, you have to use them. So I hope you are going to use. So here we go. I'm gonna tell you the formation of these sentences. So today I have brought to you the topic, as I have told you, come what may and whatever happen. Come what may और whatever happen दोनों का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए. Come what may and whatever happen, चाहे कुछ भी हो जाए. यानी इसका मतलब है, अक्सर हम ये उर्दू में बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ये काम करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमेरिका जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी एजुकेशन को जारी रखूँगा. अच्छा, अब इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है इंग्लिश में, आई एम गोना टेल यू. अब जैसे लेट सपोज मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ. चाहे कुछ भी हो जाए मैं इम्तिहान की अच्छी तैयारी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इम्तिहानात की अच्छी तैयारी करूँगा. ये सेंटेंस इंग्लिश में बना लें, जैसे चाहे बनाएं. चाहे कुछ भी हो जाए मैं लाहौर जाऊंगा. अब लेट सपोज अगर मैंने ये जुमला बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लाहौर जाऊंगा. वट एवर हैपन आई विल गो टू लाहौर. वट एवर हैपन आई विल गो टू लाहौर. या आप इस तरह बोल दें, कम वाट में, कम वाट में आई विल गो टू लाहौर. दोनों की मीनिंग इसी तरह बनेगी. ये चाहे कुछ भी हो जाए मैं लाहौर जाऊंगा. चाहे आप कम वर्ड में यूज़ करें, चाहे आप वट एवर हैपन यूज़ करें. इसी तरह नेक्स्ट जुमला आपको बताता हूं मैं, वो कैसे बनाएंगे आप. चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला अपने आप को साबित करूंगा. यानी खुद को साबित करने की बात हो रही है. वट एवर हैपन आई प्रूव माई सेल्फ वन ऑफ द क्वालिटी स्पीकर. वट एवर हैपन I will prove myself one of the quality speaker. Come what may, I will prove myself one of the quality speaker. देखें कितना ज़बरदस्त बन गया. यानी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को बेहतरीन इंग्लिश का स्पीकर साबित करूँगा. सही है, यानी मेहनत करूँगा, स्ट्रगल करूँगा. अच्छा, कम what may और वट एवर हैपन दोनों की मीनिंग क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए. अच्छा, ये चीज़ें जब हमारे पास नहीं होती, हमारे जहन में आता है कि ये कैसे बोलेंगे. जब हमारे पास इन चीज़ों का ज़ख़ीरा नहीं होता, कलेक्शन होना चाहिए. चीज़ों का कलेक्शन जब तक आपके पास नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्पीकर. आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत होती है. इसी तरह चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों की मदद करूँगा. वट एवर हैपन आई विल हेल्प आउट माई फ्रेंड. कम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल हेल्प आउट माई फ्रेंड.
यानी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कंप्यूटर सीखूंगा, कम व्हाट में आई विल लर्न कंप्यूटर, वट एवर हैपन आई विल लर्न कंप्यूटर। ठीक है ना, देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कंप्यूटर सीखूंगा। इसी तरह अगर मैं ये बोलूं चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर करूंगा, ठीक है ना, कम व्हाट में आई विल ब्रश अप माई इंग्लिश, कम व्हाट में आई विल ब्रश अप माई इंग्लिश, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर करूंगा। इसी तरह वट एवर हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल ब्रश अप माई इंग्लिश और इम्प्रूव माई इंग्लिश, इम्प्रूव भी और ब्रश अप भी। ब्रश अप का मतलब भी इम्प्रूव है जैसे कि आपको पता है। तो यानी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर करूंगा। तो देखिए कितना अच्छा हमने यूटिलाइज़ किया इसे, ये बहुत ज़बरदस्त यूजेज है। चाहे कुछ भी हो जाए जो है वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप इसको इस्तेमाल करें, योर इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी मोर बेटर दैन अदर स्टूडेंट। सो यू मस्ट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ usages and different kind of, you can say that adverb, different kind of idioms, different kind of proverb. So I think it's going to be very handy for your spoken skills. अगर आपने अपने स्पोकन स्किल्स को आपको इन्हांस करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, मज़ीद उस बेहतरी की तरफ जाना है, तो आपको इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये हुआ, आज आपने ये टॉपिक सीखा, कम व्हाट में एंड व्हाट एवर हैपन, कम व्हाट में एंड व्हाट एवर हैपन। इनका मतलब क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी चाहे कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर बनूंगा, कम व्हाट में आई विल बी अ डॉक्टर, वट एवर हैपन आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है ना। तो ये देखें कितना अच्छा यूटिलाइज हुआ इसका, हमने इसको इस्तेमाल किया जुमलों में। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड this video which exactly I have made for you, and I think you are going to make the most of this video the way I have given you tips regarding these things, and I have exactly told you in every class different kind of things regarding English. I hope you would have enjoyed it. So इसके साथ ही basically मेरा यहाँ पे लेक्चर जो है वो कंक्लूड होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।